হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ব্রজমন্ডল 84 পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই হলো অক্রুর ঘাট। কি বললাম? চাচা অক্রুরের ঘাট বলা হয় এখানে। এইখানের কথা মাহাত্ম্য অনেক সুন্দর রয়েছে। কৃষ্ণ কংস মথুরা থেকে কৃষ্ণকে মারবার জন্য অনেক অসুরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পুতনা থেকে আরম্ভ করে অগাসুর বকাসুর থেকে আরম্ভ করে এমনকি অন্তিম যে অসুর ছিল, কি নাম ছিল বললাম পুষদিন বলেছিলাম, বলুন তো? কেসি দৈত্য ছিল অন্তিম অসুর, যাকে কৃষ্ণ বলছে কংস এই মথুরা থেকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ওই কেসি দৈত্য আর ফিরে যায় নাই। এখন চিন্তা করছেন, কংস চিন্তা করছেন কি করা যাবে। সারা রাত মন্ত্রণা করলেন তার মন্ত্রীদের সঙ্গে। এখন মন্ত্রীরা বললেন, কংস শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ আর বলরাম বৃন্দাবনে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে মারার কোনো সম্ভাবনা নাই। যেমন বলা হয়েছে, সাপ যদি গর্তের মধ্যে থাকে আর উপর থেকে যদি যতই লাঠি মারুক না কেন, সাপ কখনো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে না। গর্তের মধ্যে কি করবে? আরো ওখানে পাকিয়ে পাকিয়ে বসে থাকবে, হচ্ছে না। কিন্তু সাপকে মারতে হলে গর্ত থেকে কি করতে হবে? বের করতে হবে। এখন গর্ত থেকে বের করার উপায়টা কি রয়েছে বলুন দেখি? না, গরম জল যদি ঢেলে দেওয়া যায়, সাপটা আপনি আপনাই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর যে কি, এই জন্য কংস বিচার করলেন, বার বুদ্ধিটা তো ঠিক আছে, যে কৃষ্ণ বলরামকে যদি কোন প্রকারে এই বৃন্দাবন থেকে মথুরাতে আনা যায়, তাহলে আমরা সকলে মিলে ঘিরে মারব, এই প্ল্যান করেছিলেন। এখন যাবে ডেকে, কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে আসবে ডেকে। কৃষ্ণ বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরা নিয়ে আসবে কে? এত সহজ নয়। এখন তাই চিন্তা করলেন, সারা রাত মন্ত্রণা চিন্তা করলেন, এক কাজ করা যায়। কি কাজ করতে হবে? না, একটা আমরা সুন্দর উৎসব করা যায়। সেই উৎসবটা হলো কি? ধনুষ যজ্ঞ উৎসব। সেই উৎসবের মধ্যে আমরা অনেক প্রকার অনেক প্রকারের থাকবে, এক্সিকিউটিভ থাকবে। তাতে কৃষ্ণ বলরাম যখন আসবে, বিশেষ করে ধনুষ যজ্ঞের মধ্যে যখন আসবে, তখন প্রথমে আমরা যদি কৃষ্ণকে প্রথমে কি করব? না, কৃষ্ণকে কুবলায় হাস্তি দিয়ে তাকে মেরে ফেলা হবে। আর তার থেকে যদি বেঁচে যায়, তাহলে কি করা যাবে? না, চানুর মুষ্টিক আর কি নাম স্যার, এদের দ্বারা কি করা যাবে? না, যুদ্ধ এই করা যাবে, কি বলে, কুস্তি দঙ্গল করা যাবে। এই দঙ্গলের মধ্যে বিশেষ করে এই যে কুস্তিওয়ালা যে ছিলেন তারা মেরে ফেলবে। আর ওর থেকে যদি বেরিয়ে আসে কৃষ্ণ, তাহলে কি করা যাবে? না, আমরা সকলের যতগুলো আমাদের রাজাজন রয়েছে, কংসে যত অনুচর রয়েছে, সকলে তীর ধনুষ আর অস্ত্র নিয়ে সব তৈয়ার থাকে। ওর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সকলকে একসঙ্গে সব কি করবো? না, আক্রমণ করে ফেলবো। যেমন অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরে, অভিমন্যুকে যেমন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে চক্রব্যূহ রচনা করে
कर्म भूमि नहीं है। क्योंकि हम लोग अब श्रवण किया था, जिस दिन हम लोग वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, यही परिक्रमा करते करते यहाँ पर एक रास्ता चला गया और वहीं पर जब हम लोग जब मोड़ लेते हैं ना, जहाँ पर और बद्रीवन कहा जाता है, जहाँ पर व्यासदेव जी ने एक गोपी गीत रचना आदि की, यह जो गुरुदेव कहते थे, ठीक हो बद्रीवन। বাংলা বাংলা हाँ বাংলা বাংলা ইংরেজি হয়ে গেছে হিন্দিতে বললেন वो वहीं पर क्या की न कंस वहीं पर एक बार चले गए थे, कंस विचार करने लगे मैं ही चला जाता हूँ और मैं कृष्ण बलराम को जब मार करके आता हूँ। एक बार कृष्ण क्या की चले गए, एक कृष्ण करो कंस जो है चले गए, कंस जब चले गए उस समय पूर्णवासी देवी कंस को पकड़ लिया और पकड़ करके वहां पर एक विशाल तालाब था, उस तालाब में उसको क्या कर दिया, डुबो दिया। और देखते देखते कौन से डोगरी बन गई और डोगरी जब बन गई और वहीं पर से जो मैं उसके बैठा थी और सारे गोपियां आकर के कहते बता तू कहाँ के रहने वाली हो, कौन सा बता नहीं भाई, अरे डोगरी तेरा कसम कौन है, ये बता नहीं भाई, अरे कौन सा गांव के रहने वाली हो तो बताओ। बिल्कुल कंस के जो है बाल सफेद हो गया, आंख उनकर घुस गई, ऐसे तो सब गोपियां कहने लगे ये तो कहां से आई है, सारे गोपियां के इतने गुच्छ मारने लगे, इतने गुच्छ मारने लगे, कंस चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय जो मैं पूर्ण देवी आकर के उनको रक्षा की और फिर कंसों के याद पकड़ करके फिर उसी तालाब में उसको डुबा देने के साथ से कंस पूर्ववत उनके विशाल शरीर जगत के शरीर हो गया और कंस क्या की मैं दौड़ करके बच गए, जैसे गौशाला में आग लग जाने पर और दरवाजे कोई खोल दिया जाए, जैसे गाय जैसे अपने पूंछ को ऊपर उठा करके जैसे दौड़ते हैं, उसी प्रकार उनसे दौड़ने लगे। इसलिए कंस जानता था ये ब्रज की धूल करना में नाजिनी पूछा एक जादू है, इसलिए कम से जानता देखिए, किंतु कम से ये जो भाई जो है किसको बताती नहीं थी। भाई जो अच्छी लोग होते हैं ना अपने दोस्त किसको बताते ही नहीं, जो मूर्ख हो जाता है अपने दोस्त को बता देते। वे बुद्धिमान जो होता है, बुद्धिमान लोग नहीं रखेंगे अपने कमजोरी को किसी को मत बोलो, समझ में आने के शत्रु को यदि पराजित करना है तो क्या करो, अपने जहां पर कमजोरी मत करो। तो कंस उसी में कोई न्याय में नीति में था, इसलिए कंस ने तो विचार करने लगा कि क्या की जाए, तो कहा एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर मथुरा में एक व्यक्ति रहता है, वो हमारे साथ में भी है और उधर कृष्ण के पक्ष में है, इसलिए क्या की जाए, वो व्यक्ति कौन है न अक्रूर है, अक्रूर के यदि किसी प्रकार भेजा जाए, अक्रूर जरूरी लेकर के आए। इसी प्रकार सारा रात मंत्रणा करते करते कंस ने विचार किया और उनके मंत्री वर्ग उनके सलाह दी, जाओ अक्रूर तुम कृष्ण बलराम के लेकर के आओ, हम लोग यहाँ पर विशाल एक मेला करेंगे, उत्सव बनाएंगे, धनुष चक्र उत्सव बनाएंगे। तो अक्रूर मानो मन विचार करने लगे, जिसके मृत्यु के समय आ जाता है वो जानबूझ करके क्या करता है, सांप के गर्त में वो आग घुसाता है और सांप को काट देता है। इसलिए अक्रूर विचार करने लगे कंस के पाप के घड़ा क्या हो गया, भर गया और वो फूटने वाला है, जिसके मृत्यु के समय आ गया। अक्रूर मन विचार करने नहीं परमो लाभ हो, मेरा परम लाभ है वो पर ब्रह्म कृष्ण के हम दर्शन करेंगे। और ऐसे विचार करके अक्रूर ने किया कि अपने सुंदर रथ सजाया और रथ सजा करके चल पड़े। कहते हैं कौन सा दिन को चला था, दशमी के दिन न एकादशी के दिन, एकादशी के दिन चल पड़े, द्वादशी रहे, त्रयोदशी के दिन आगे, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। और चतुर्दशी के दिन कंस की बहुत ऐसे शास्त्र में बताया गया। अच्छा, अक्रूर जब चलने लगे, अक्रूर चलते देखो मथुरा से जब चल पड़े, चलते चलते
अक्रूर मन में बहुत चिंता आदि करने लगे। घोड़े को लेकर के रथ के जो घोड़े जो है उसके चलाते 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 क्या हो गया, शाम तक हो गया। क्यों? कृष्ण लीला आदि स्मरण करने लगे। क्या कृष्ण बलराम मुझे चाचा चाचा बोल करके क्या मुझे पुकारेंगे? ऐसी स्थिति करते करते अक्रूर ने क्या की ना नंदगांव के समीप वहां पर सुंदर स्थान है, उसे कहा जाता है चरण पहाड़ी। हम लोग जाएंगे, जब हम लोग नंदगांव जाएंगे वो चरण पहाड़ी वहां पर आप वो देखा क्या सुंदर कृष्ण के चरण चिन्ह है, गायों के चरण चिन्ह है। अक्रूर वहां पर जाकर के लोट पोट खाने लगे और सब स्तुति आदि करने लगे। ये श्रीमद् भागवत में सुंदर रूप में ये समस्त वर्णन है। अच्छा चलो, अक्रूर फिर शाम हो गया, आकर के नंदालाई में आए और उस समय नंद महाराज ने उसके आदर जत्न करके बैठाया और बैठा करके सारी ये बात बताने लगे। ये कंस वह पर मथुरा में सुंदर एक धनुष यज्ञ किया और कृष्ण बलराम जा। किंतु से सुनते नंद महाराज तो कहने लगे कैसे होगा, हमारे आंखों की पुतली जो है, आंखों की पुतली कौन है? कृष्ण और बलराम, कैसे भेजेंगे? नंद महाराज किसी प्रकार अनुमोदन नहीं किया। अंत में अक्रूर ने क्या की ना कृष्ण बलराम के पास जाकर के और उनके क्षत्रिय भाव के उद्दीपन कराने लगे। कहने लगे देखो कृष्ण, तुम्हारे वास्तव तुम्हारे माता पिता जो है देवकी और वसुदेव, देखो तुम्हारे जन्म के बाद ही दुष्ट कंस ने क्या की तुम्हारे माता पिता के छत्ती पर पत्थर रख करके रखे हैं, अंधकारागार में पड़े हुए हैं। और देखो तुम्हारे कर्तव्य है माता पिता को जो है बंदी से मुक्त कराना, इसलिए तुम चलो। इस प्रकार करके तथापि कृष्ण बलराम अनुमोदन नहीं किया। तथा हमारे लिए एक माता पिता तो ही है, नंद और यशोदा, तुम आप कैसे सुना रहे हो? क्योंकि अक्रूर देखा इससे भी काम नहीं हो रहा है। तब अक्रूर ने क्या की, बोले देखो वहां पर सुंदर धनुष यज्ञ हो रहे हैं, उस धनुष यज्ञ में तुमको भाग लेना है। वहां पर बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं पहलवान आएंगे, उनके साथ कुश्ती लड़ना है, ये करना है वो करना है और ये सब का। तो अब देखो उस समय कृष्ण और बलराम के शरीर में इतने जोश आ गया, क्षत्रिय भाव की भावना करते हम जाएंगे चाचा चाचा हम जाएंगे। बस काम हो गया। जब ये काम हो गया अक्रूर ने कृष्ण और बलराम आकर के नंद महाराज के गोद में बैठ करके दाढ़ी को ऐसे सुलाते हुए कहने लगे पिताजी हम मथुरा चलेंगे, वहीं पर धनुष यज्ञ दर्शन करेंगे और क्या क्या विशाल उत्सव है। ये हम लोग ब्रज में रहते हैं, गाय चराते हैं वो में, किंतु वहीं पर हम दर्शन करेंगे, कम से कम देखते मथुरा कैसे है, हम एक दर्शन करेंगे। देखो जब कृष्ण बलराम नंद महाराज ने ऐसे बोलने लगे, अनंतर नंद महाराज ने ऐलान कर दिया, अच्छा काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के और रथ पर बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसलिए ऐलान करने के साथ और हम लोग भी अनेकों प्रकार द्रव्य सामग्री दधी दुग्ध आदि तो ये सब हम भेजेंगे। ऐसे करके देखो इस कथा सुनते ही पहले तो ब्रजवास ब्रज गोपी लोग मूर्छित, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाए, इसी कहा जाता है भावी विरह। तीन प्रकार के विरह शास्त्र में कहा गया, एक भावी विरह, एक भावन विरह, एक भाव विरह। इतना ही आप समय कम है, इसके तो बहुत दक्षिण जो है प्रेजेंटेड पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इतना ही आप समझे। भावी विरह, भावन विरह और भाव विरह है। अभी कृष्ण वृंदावन से मथुरा नहीं गए, केवल इसी सुनते ही ब्रज गोपी लोग क्या करें, अहो विधाता तब न कच्चित् दया संयोग मैत्री प्रणयेन वा। उस समय ब्रज गोपियां इतने विरह में कितने डूब गई है, अपने ससुर जुट में बैठ करके ब्रह्मा जी के प्रति उल्हाना देने लगे, गालियां देने लगे।
ग्रंथ में ये समस्त वर्णन है। आइए कथा में इसके पश्चात जो है कृष्ण और बलराम रथ में बैठे, प्रातः काल में समस्त गोपियां चारों तरफ घेर करके बैठे, जाने नहीं देंगे। किस प्रकार किसी प्रकार से अक्रूर ने कृष्ण बलराम को लेकर के इधर उधर घुमा करके यही वृंदावन से इसी स्थान पर पहुंचे। ये यहाँ पर ये विशेष स्थान है, हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं इस स्थान को कहा जाता है मथुरा और वृंदावन की बॉर्डर सीमा कहा जाता है। ये सीमा भारतवर्ष और पाकिस्तान। देखो इस तरफ पाकिस्तान पड़ जाता है और इस तरफ हिंदुस्तान पड़ जाता है, बांग्लादेश। अच्छा, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम कृष्ण उस समय अक्रूर जब यहाँ पर आ गए, अक्रूर क्या थी, चलते चलते यहाँ पर आके रथ को रख दिया और मन मन विचार करने लगे कि ये कृष्ण बलराम क्या मेरा वही इष्ट देव है? बोले प्रभु जी हमारा वही इष्ट देव है कि नहीं है? पर ब्रह्म भगवान है, पर ब्रह्म है कि नहीं है? वो संकर्षण है कि नहीं है? इसलिए यह विचार करके उन्होंने क्या कि अक्रूर यहाँ पर रथ रख करके निकट में जो है वो हृदय क्या बोलते ब्रह्महात में जब स्नान करने लगे और एक डुबकी लगा, दूसरी लगा और अंदर में उसको दिखाई पड़ा है वही जो है ब्रह्म जो पर ब्रह्म भगवान है। और उनके बलदेव प्रभु जानी शेषनाग के रूप में, उनके छत्र के रूप में है और वहीं पर ये रूप दर्शन किया। वो दर्शन करके उनके प्रतीत हो गया ये कृष्ण बलराम साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। इसका जब आगे इसके बाद अक्रूर ने किया कि बहुत स्तुति भी किया हुए पर यहाँ पर अक्रूर के अनेक स्तुतियां हैं। और इसके पश्चात अक्रूर ने किया कि कृष्ण बलराम के लेकर के इस स्थान से आगे चल रही। हमारे आचार्य के पास इसके वर्णन करते हैं जिस प्रकार शास्त्र में लिखा गया। देखो भगवान के त्रिविध धाम है, एक है वृंदावन धाम, एक मथुरा धाम और एक द्वारिका धाम। इसके वृंदावन धाम के कहा जाता है पूर्णतम धाम कहा जाता है, मथुरा के कहा जाता है पूर्णोत्तर धाम कहा जाता है और द्वारिकापुरी के कहा जाता है पूर्ण धाम कहा जाता है। आप उल्टी की तरफ आइए, पूर्णोत्तर और पूर्णोत्तर धाम। इस धाम में भगवान जो है नित्य विराजमान रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, ये पहली लाइन है। इन्हें कहता है वृंदावन के कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं और मथुराधीश कृष्ण मथुरा छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारिकापुर के छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तथापि प्रकट लीला में दिखा जाता है गतागतिक, माने इधर से उधर जा रहे, इधर से उधर आ रहे। जैसे कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र पधारे, कुरुक्षेत्र से पुनः द्वारका गए, द्वारका से फिर कृष्ण जो है कहाँ गए, मथुरा में आए। मथुरा में आकर के दंत वक्र के जो है मार चुका मारा। इसके बाद कृष्ण जमुना पार करके वृंदावन में पधारे और पधार करके गोपियों के साथ रास विलास आदि की। ये समस्त हमारे आचार्य पाद अपने अपने टीका में ग्रंथ में वर्णन किया। किंतु तथापि हमारे आचार्य पाद कहते हैं वास्तव रूप में वृंदावन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो केवल अक्रूर जब रथ ये बसने लेकर के और वृंदावन की सीमाना पार करके जब मथुरा में प्रवेश किया और साथ ही साथ अभिनंदन कृष्ण वृंदावन कृष्ण यहीं से अंतर्ध्यान होकर के अलक्षित रूप में अनविजिबल रूप में कहाँ रहने लगे, वृंदावन में रहे। जैसे राधा जी के बारे में भी कहा जाता है शोभानंदिनी श्रीमती राधिका, उनके दो प्रकाश है, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी। ये सब कथा आप लोग सब पक्का है ना। चलो इसे कहते हैं उसी प्रकार कृष्ण ने क्या की और यह से अंतर्ध्यान हो गए और मथुराधीश कृष्ण अपुर के रथ पर बैठ करके चले गए। किंतु ये जो है साधारण लोगों के पता नहीं है। जो सिद्ध महात्मा होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब दर्शन करते हैं। जैसे कहा जाए अद्यावधि कृष्ण लीला परे गौरा, अद्यावधि
दर्शन करके चले गए और वहीं पर जाकर के आगे की जी लीला कथा जो है इस प्रकार वह पर भी सुंदर कथा है। जे अंत में जाकर के कुबल के वध किया। कुबल के वध के पश्चात जो ये हाथी के जो है दो दांत को लेकर ले चले, फिर कानून मुस्टिक आदि इनको भी पराजित करके और मामा के क्या भेड़ दिया, हस्ती दंत का भेड़ दिया। सोने चांदी हीरे जवाहरात किसके पास, हाथी हस्ती दंत के पास कुछ नहीं है, इसने क्या हस्ती दंत जो है हाथी को दांत को जो है उनको भेड़ दिया। और भेड़ देकर के बाद कब कृष्ण बलराम कंस के ऊपर चढ़ गए और उनको मार डाला। इस मतलब बना है, इसलिए इसमें कहा जाता है अपूर्व घाट भी कहा जाता है। ये स्थान अतीव दिव्य अप्रकृत स्थान है। यहाँ पर एक लीला है, देखो यहाँ पर हमारे चैतन्य महाप्रभु के लीला यहाँ पर भी सुंदर है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। आज हम लोग जैसे मथुरा वृंदावन आदि वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण लीला के समय ऐसे नहीं था। महाप्रभु के समय ऐसे नहीं था। आज से करीब 500 साल 550 साल पहले ये स्थान कैसे अत्यंत बिहार जंगल था। ये वृंदावन जो आप देख रहे हैं, ये वृंदावन पूर्ण रूप से क्या था, जंगल में भरा हुआ था। शेर से लेकर के और अनेक प्रकार के जो है और सांप आदि रहता था। केवल चोर डकैत बदमाश यहाँ पर छुपा करके रहता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब पधारे और चैतन्य महाप्रभु आकर के यहाँ पर अकुल घाट पर रहते थे और दिन के समय जाकर के इमली तालाब में जहाँ पर परसों हम लोग श्रवण किया, कल श्रवण किया था, यह से चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे, इमली तालाब में जाकर के जमुना के किनारे पर बैठते थे और इस मतलब लीला आदि स्मरण करते थे। और इस पर चैतन्य महाप्रभु इस लीला आदि प्रकाश आदि की ये समझता अकुल घाट निकालता है, क्योंकि उस समय इसमें बिहार जंगल है। फिर धीरे 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 लोग आने लगे। उस समय लोग वृंदावन कोई आता ही नहीं था, केवल बंगाली लोग आते थे। आज समझते कि बंगाल में कौन आता था, बंगाल में जो भक्त होते हैं ना, राजा जी महाराज का बड़े बड़े धनी लोग जो है ये वृंदावन की सारी जगह को जो है रखा हुआ। आज तक भी 300-400 साल पहले के जितने भी डील है, दलील है, उसमें देखो सारे बंगाल के लोगों की ये सब डील है। और ये तो पर धीरे 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 बाहर से लोग आकर के और उस स्थान को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्योंकि उसमें बंगाली लोग आते थे फिर चले जाते थे और उस समय लोगों के क्या केयरटेकर के रूप में दे देते थे और वो धीरे धीरे क्या कर लिया, वो अपने कब्जा बना लिया। कहते हैं ना जिसके लट्ठी उसकी भैंस, और बस ऐसे ही से हो गया। आप जितना भी हमारे रूप सनातन मर देखो, उसके भी लिखा 300 साल पहले कोई बंगाली के जो है जगह है। जब गुरुदेव ये स्थान को रूप सनातन मठ पे जॉब किया था, उस समय तो हमारी क्या बोले राजेश जी भी आए थे। आज समझे उससे इतना सही नहीं था। वो जो दिया था वो क्या बोले हमारे दामोदर जी जो दान किया था, और उस समय वो भी था, उसमें कैसे लेना इतना सहज नहीं था। वो बहुत था, पुजारी निकल नहीं रहा था। मैंने उस समय कुछ पैसे दे दिया गुरुदेव जी वो जो है। अभी हमारे सामने में जो पंडित जी रहते ना, वो मंदिर के पुजारी थे, वो जान निकालना नहीं चाहते था। और उसके गुरुदेव के जो उसके सहित उस समय 11,000 ने कितना पैसा दिया था और तब निकले, वो भी निकले। हमारे राजेश जी जो है अभी हमारे में बैठ गया, ये पुलिस में काम करता है, वो आकर के कोई धमका है तब निकले। इतना सहज नहीं है। रूप सनातन के जो है वास्तव खून किसका है, आपका नया लड़के आ जाता है, कहते हम सब कुछ करने वाले हैं, मालिक बन गए सब। और हम लोग के खून दिया, हम लोग के कुछ पूछने वाले खून का पसीना, खून आज पसीना हो गया, वो कोई मूल्य नहीं है। बोले जैसे संसार में होता है ना, वृद्ध माता पिता के कोई पूछने वाला नहीं होता है। जो नया लड़का आ जाता है ना, नया पुत्र अच्छा लगता है। नया अच्छा लगता है। किंतु शास्त्र में क्या कहा था, बंगाल में कहते हैं
राक्षस समय जिसको कहा जाता है, ब्रह्ममुहूर्त के पहले जो स्नान होता है उसके कहा जाता है राक्षस समय कहा जाता है। उस समय ये वरुण के चर्च घूम रहे थे और उस समय नंद महाराज जब एक यमुना में स्नान करने के लिए गए, उस समय उनको वरुण के दूत उसे पकड़ करके ले गए और वृंदावन में ले गए और सभी ब्रजवासी उठे, देखो कहा नंद महाराज कहाँ गए कोई पता ही नहीं चला। तो फिर जब ब्रजवासी लोग रोने लगे तो कृष्ण ने किया कि वो वरुण लोक में गए और वरुण लोक में जब गए समस्त लोग वरुणवासी समस्त लोग कृष्ण के जाए बहुत स्तुति आदि करने लगे, उनके आंच ऊंची आसन पर बैठाया, उनके स्तोत्र स्तुति आदि करने लगे और एक भी कृष्ण के क्या करे सभी दुग्ध गीत और मधु शहद आदि के द्वारा पंचामृत के स्नान आदि कराने लगे, बहुत स्तोत्र स्तुति करने लगे और इसके बाद जो है वो लोग कृष्ण के क्षमा प्रार्थना किया। फिर नंद महाराज के लेकर गए। देखो नंद महाराज जब यहाँ पर आए ना, नंद महाराज आकर के वरुण लोग की सारी कथा सुनाया और सुन करके ब्रजवासी को इच्छा हुई ये कन्हैया तो एक काम कर हम लोग भी ऐसे लोग दिखा देना, वरुण लोग हम लोग देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने देखी जोग माया के द्वारा, लंबी कथा है ना, अच्छा जोग माया के द्वारा उस वरुण लोक में ले गए और वरुण लोक में देख रहे कृष्ण वहीं पर बैठे हैं, ना पृथ्वी से बात करते हैं, वो तो उससे जो भूमि है ना हाँ अच्छा वहीं पर तब करने लगे ये वो है। तब ये लोग अरे कन्हैया मुझे स्थान दीजिए, हमें ब्रज में ले चलो। यहाँ पर एक तत्व सिद्धांत है ब्रजवासी लोग कहीं भी जाए किंतु ब्रज छोड़कर कोई अच्छा नहीं लगता है। आप ब्रजवासी हो ना, देखो कहीं भी जाओ जिस थोड़ी सी ब्रज के भाव हृदय में हो, ब्रज छोड़कर के और कहीं अच्छा नहीं लगेगा। फिर कृष्ण ने क्या कि उन लोगों के फिर यहाँ पर लेकर के पधारे। ये सब तो बहुत विस्तृत विवरण है, ये दिव्य अपराजित स्थान है, अभी निकट में भाद्रोल है। ये सब कथा हम लोग से जगदीप पत्नी के उपाख्यान श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हमारे संत महाराज जी वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो क्रूर घाट की जय, ब्रह्महट की जय, जय श्री राधे। राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य